हेलो मैम, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। ओके, आज हम लोग थोड़ा सा हो सकता है जल्दी रैप अप करें बिकॉज आई एम नॉट फीलिंग टू वेल। बट लेट्स सी, ये चैप्टर तो डेफिनेटली विल ट्राई टू फिनिश। ओके, किया था कल एग्जांपल्स दैट आई हैड आस्क्ड यू ऑल टू डू। Yes, ma'am. Yes, ma'am. समझ में आया कि क्या हुआ? हेजिंग एंड स्पेक्यूलेटिंग यूजिंग फॉरवर्ड्स एंड फ्यूचर्स। कोई डाउट्स दोनों एग्जांपल में? नहीं, ma'am. ग्रेट। ओके, so now let's look at payoffs of different derivatives. Basically, call option, put option and forward or future. Forward future दोनों का पे ऑफ सेम ही होता है क्योंकि बिकॉज द ओनली डिफरेंस इज द मार्जिन रिक्वायरमेंट विच इज नॉट रिफ्लेक्टेड इन द पे ऑफ. सबसे पहले तो व्हाट इज पे ऑफ? पे ऑफ इज बेसिकली दैट under different scenarios, what amount are you getting on maturity? Not on maturity, what amount are you getting under different scenarios? Scenarios क्या होंगे? Scenarios mainly होंगे that जो underlying है, how your payoff is being determined through the price of the underlying, because derivatives है, their payoffs will obviously be related somehow to the price of the underlying. The price of the underlying, यहाँ पे in these examples we are going to consider that the underlying is a stock. ओके, बट जरूरी नहीं है स्टॉक ही हो, एनी काइंड ऑफ अंडरलाइन के साथ पे ऑफ ऐसे ही बनते हैं. ठीक है, तो सबसे पहले वी आर टॉकिंग अबाउट अ कॉल ऑप्शन. व्हाट इज अ कॉल ऑप्शन? कॉल ऑप्शन जो होता है दैट इज बेसिकली, फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स एन ऑप्शन. दो ऑप्शन होते हैं, कॉल होता है एंड पुट होता है. Why are they called options? They are called options because whoever is buying them, whoever is buying that security has no obligation. They have an option. They have a choice to exercise the security. जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको एक्सरसाइज करने का चॉइस है. इट इज नॉट ऑब्लिगेटरी. फॉरवर्ड फ्यूचर में क्या, इट इज ऑब्लिगेटरी दैट यू हैव टू complete the contract. But in case of options, there is no obligation. Call option क्या होता है? Call option is basically, so we can say it is like a choice, or you can say it is like a right. If you want to exercise the right, then okay. If you don't want to exercise this, then it's your choice. The call option is whoever is buying the call option. Remember, यहाँ पे we are only talking about the people who are buying the options. They don't have any obligation. Whoever buys the option, call option है, so they get a right to buy. And in case of a put option, the buyer gets, buyer of what? Not buyer of share, buyer of the option. Please ये चीज में एकदम कंफ्यूज मत होना. यहाँ पे we are going to be talking about two things. One is the underlying and one is the option. Option भी एक सिक्योरिटी है, उसको भी बाय सेल करना होता है. तो if you are buying an option, then through a call option, we usually call it C plus. We plus हमेशा क्या होता है? Long, minus is short, plus is buy, minus is sell. So if you are buying a call option, you get right to buy. If you are buying a put option, you get right to sell. ठीक है, but right to buy and right to sell whom? If you have a right to buy, then there has to be a counterparty who will have to sell you, who will have to sell the share to you. तो उसके लिए क्या होगा? ऐसा तो हो नहीं सकता that both sides of the contract or both parties to the contract get a choice. Then तो कुछ होगा ही नहीं.
बिकॉज हम लोग क्या देखे थे, देयर विल ऑलवेज बी वन विनर वन लूजर. तो जो भी लूजिंग साइड होगा, दे विल नॉट एक्सरसाइज देयर राइट, एंड एज सून एज दे स्टॉप एक्सरसाइजिंग, द कॉन्ट्रैक्ट फॉल्स अपार्ट. तो ओनली द बायर्स हैव द राइट्स. एनीवन हु इज सेलिंग द कॉल ऑप्शन, व्हिच मींस जो फ्लिप साइड पे है, उनके लिए इट इज एन ऑब्लिगेशन that if the call option buyer comes and says that I want to buy the share, then the seller has an obligation to sell it. Similarly, P minus obligation to buy it. If the put option buyer comes and says that I want to exercise my right to sell this share, then the put P minus has to accept it. They have to buy it. They don't have an option. So it's an obligation. ठीक है. So this is call and put. अब किसी को लगेगा कि people will always want to buy only. Why will someone sell? Right? The reason why someone will sell it, अभी हम लोग पे ऑफ में देखेंगे. तो usually option में if you are getting some right, you will not get it for free. If you want to go and buy any right, then you will have to pay something for it. So in case of options, in case of calls and puts, we pay a premium. We pay a premium. So if I want to go and buy a call option to sell 10 shares, then I will have to pay some premium for these 10 options. Okay? तो क्या होगा? And when will I exercise? Now let's see. ये concept हो गया. Let's see when is what exercised. पहले बात करते हैं calls का. Let's focus on calls right now. एक बात बताओ. Let's say call option जो है contract है, same features होगा, that future date पे call option is giving the right to buy at a future date at a specified price, right? तो let's say 3 months बाद का है, buy it after 3 months at rupees 50. Now if you have bought the call, ठीक है, you have bought the call. Again 3 scenarios. When will you exercise the right? You have bought the call, कि you can buy at 50. So when will you go and exercise the right? When the strike price is at 60. When the what price? Strike price. Strike price कहाँ से आया? Strike price तो I haven't discussed till now. और strike price को गलत बोला क्या? हाँ, strike price ये नहीं होता. Sorry. No problem. But हाँ, the underlying asset is 60. when the underlying asset is 60 or when the stock price is at 60, right? Market में जब आपको 60 पे मिल रहा होगा, that time you will feel that market say if I buy I'll get it at 60, but I have the right that I can go and buy at 50, so you will exercise the right. But when market में the price is 40 and you have the right, you are not obliged that you have to buy at 50. So you will simply go and buy in the market and your call option will lapse. It will lapse because you did not exercise your right. Correct? Now, if the call option lapses, तो क्या होगा? You had paid some premium. Let's say premium was 5 rupees. 5 rupees तो you had given to the other party. इसमें premium you have to give to C minus or P minus. Whoever is selling it, उसको देना होगा. Okay, just give me a. हाँ, तो 5 rupees का premium you had paid to buy the option. तो now जब 40 पे गिरा and you decided that you will let the option go, you will let the option lapse. तो ये 5 rupees premium for every option goes to the seller. Goes to the seller. Right?
तो ऐसे करके, क्योंकि मार्केट में बिकॉज whoever is selling they also know कि how our price is going to fluctuate, they also have some views. तो whoever is selling the call option, selling, okay, उसका क्या व्यू होगा मार्केट में? why will they sell, what view will they sell with? उनको क्या लग रहा है मार्केट में क्या होने वाले? मार्केट में प्राइस फॉल होगा. right, market में prices are going to fall, so they are basically betting on the downside. and whoever is buying the call option, उन लोग क्या कर रहे हैं? what are their views on the market? their view is that prices are going to rise. Now, one technical term for this falling and rising markets, सुना भी होगा आप लोग ने, बिग बुल etc. when markets are rising बोलते हैं bull market, और their views are bullish. C plus is bullish और upside betting. गिरने वाले मार्केट को बोलते हैं bear market, views are bearish. ठीक है, तो समझ में आया? C minus is people who have bearish views, C plus is people who have bullish views. Okay, now let's look at strike price, what you had just mentioned. Strike price क्या होता है? Basically the price at which you are contracting, the price which you are fixing is called the strike price. Okay, and it is usually denoted by the letter X or by the letter K. कहीं कहीं X यूज होता है, कहीं कहीं K यूज होता है. ठीक है, जो शेयर प्राइस है या अंडरलाइन का प्राइस है, underlying price is denoted by the letter capital S. If we talk about time zero, which means the day you are entering into the contract, उस दिन का share price will be S0. After let's say 1 year, it is denoted as S1. At time small t, let's say ST. Maturity is capital T. Capital T is always maturity. जिस दिन your option becomes exercisable और जिस दिन your option expires. Okay, notations clear है? And capital C, as you all know, is the call option. So CT is basically the payoff that you are getting from your call option. Clear up till here everything? All notations, basics सब? Now let's look at the payoff. Let's look at the payoff. कि कैसा payoff होगा. पहले graphically देखेंगे and then we'll also do it using the notation. Suppose this is the graph. इस graph पे on the horizontal axis I am plotting S. What is S? Underlying price. On the vertical axis I am plotting the payoff. Now tell me, suppose over here this mark is the strike price. I am denoting it as K. That strike price will be somewhere on the line of the stock price only. क्योंकि stock price का ही one specific price is your strike price. So now tell me, when are you going to exercise the call option? We are drawing a payoff graph for C plus. Call option exercise कब होगा? When it is lying in this area, when the stock price is more than the strike price, right? ये हम लोग already establish कर चुके हैं. Before the strike price, मतलब when the share price or the stock price is below the strike price, तब क्या होगा call option का? लैप्स हो जाएगा. Lapse हो जाएगा. तो which means there will be zero payoff. There will be no payoff. So if I use a red color
कैन आई से स्ट्राइक प्राइस के पहले 0 पे ऑफ है, स्ट्राइक प्राइस के बाद क्या होगा? सपोज स्ट्राइक प्राइस, like our example is 50. Now if share price becomes 51, 55, 60, पे ऑफ क्या होगा इन एवरी सिनेरियो? बैलेंस अमाउंट मिलेगा ना, बेसिकली द प्रॉफिट। तो 50 पे पे ऑफ क्या होगा? 0। 0, 51 पे 10, 10 क्यों? 10 शेयर लेते ना लास्ट टाइम तो। नहीं, वो फॉर प्रीवियस एग्जांपल है, अभी हम लोग सिर्फ 1 शेयर का बात करें। दिस इज फॉर 1 कॉल ऑप्शन, 1 शेयर का। तो 1 होगा पे ऑफ। 1, 5 5 and 10. Any doubts in this? Any doubts in this? No, ma'am. No? तो क्या हो रहा है? जैसे जैसे इट्स लाइक अ लीनियर मूवमेंट, जैसे जितना ज्यादा अब स्टॉक प्राइस बढ़ेगा उतना ज्यादा पे ऑफ बढ़ेगा। एंड यूजिंग योर बेसिक मैथ स्किल्स, अगर लीनियर रिलेशन होता है तो ग्राफ कैसा बनता है? 45 डिग्री लाइन। तो स्टार्टिंग फ्रॉम 0, बिकॉज 50 पे 0 होगा, एंड देन जैसे जैसे स्टॉक प्राइस विल गो ऑन इंक्रीजिंग, लीनियरली इंक्रीज होगा। मेक सेंस? यस मैम। नाउ इसमें हम लोग एक और एलिमेंट ऐड करते हैं। इन दिस सिनेरियो वी इग्नोर्ड एनी काइंड ऑफ प्रीमियम पेमेंट, विच मीन्स कि 50 का स्ट्राइक प्राइस है तो यू आर नॉट लूजिंग एनीथिंग, बट एक्चुअल में if the share price is at 50, which is the strike price, you have lost your premium amount. 5 rupees का प्रीमियम था, Yes, ma'am. 5 rupees का प्रीमियम था। In fact, even below 50, when you are lapsing, when you are not exercising your option, that time also you are incurring a loss of 5. Yes, Using ma'am. blue, suppose ये -5 है, स्ट्राइक प्राइस तक you have a -5 loss. Yes, अब ma'am. फ्रेश सिनेरियो में मेरे को बताओ पे ऑफ क्या होगा? 50 पे क्या होगा? -5, 51 पे, -4, -4, 55 पे, 0, 0, एंड 60 पे। 5. 5. वेरी गुड, बिकॉज जो भी आप प्रॉफिट कमा रहे हो बाय सेविंग ऑन द परचेज प्राइस ऑफ द स्टॉक, पहला 5 आपका प्रीमियम में सेट ऑफ होते जा रहे हैं। तो क्या होगा? व्हाट विल द ग्राफ लुक लाइक? आफ्टर द स्ट्राइक प्राइस इट विल स्टार्ट राइजिंग, बट व्हेन विल इट हिट 0? व्हेन विल इट गो ब्रेक इवन? एट 55, or can we call it strike price plus the premium? Strike price plus premium पे it will hit break even. Make sense? क्योंकि ये वाला जो इंक्रीज है, this part of your increase, this part is being used up in setting off your premium. This part is being used off in setting off your premium. And फिर उसके बाद स्ट्राइक प्राइस प्लस प्रीमियम पे आपका ब्रेक इवन होगा, एंड उसके बाद से जितना जितना शेयर इंक्रीज होगा उतना उतना आपका प्रॉफिट इंक्रीज होगा। ओके यहाँ पे एक दिक्कत आ सकता है आप लोग को, ये 55 है, ठीक है, k + 5 इज 55। लेट्स से इसके बाद में यहाँ पे आई हैव 60, पे ऑफ कितना होगा? 5, थोड़ा सा एक्सटेंड करके लेट्स से यहाँ पे 70, पे ऑफ कितना होगा? 15. 15। तो क्या हो रहा है?
10 से इंक्रीज हुआ 60 to 70, तो पे ऑफ भी 10 से इंक्रीज हुआ, तो अभी भी लीनियर इंक्रीज तो हो ही रहा है. डिफरेंस क्या है दोनों सिचुएशन में? रेड वाला व्हेन वी वर इग्नोरिंग द प्रीमियम, उस टाइम द लीनियर इंक्रीज स्टार्टेड फ्रॉम द स्ट्राइक प्राइस, बट नाउ द लीनियर इंक्रीज इज स्टार्टिंग फ्रॉम स्ट्राइक प्राइस प्लस प्रीमियम अमाउंट. ठीक है. So now if ever someone asks you C plus का payoff क्या है, सीधा this diagram should come in mind. Straight line and up. Okay. अब जो प्रीमियम होता है, because प्रीमियम क्या है? प्रीमियम is nothing but the value of the call option or the payoff from the call option at time zero, because प्रीमियम टाइम जीरो पे पे हो जाते हैं, तो प्रीमियम को we also denote as C0. We denote the premium as C0. ठीक है. अब ये जो ग्राफ बना हुआ है इसको देखते हैं. क्या हो रहा है? X is the strike price. This is the zero line. This is the zero line. Okay. जो डॉटेड वाले हैं, यहाँ पे लिखा हुआ भी है जीरो, डोंट गेट कंफ्यूज्ड. तो X तक इट इज जीरो एंड गोइंग अप. ये वाला जो ब्लू डॉटेड लाइन अपवर्ड मूविंग है, दिस इज इंक्लूडिंग द प्रीमियम. ये प्रीमियम हुआ, धीरे धीरे इंक्रीज हुआ एंड देन कीप्स गोइंग अप लीनियरली. दूसरा वाला ब्लू डॉटेड लाइन एक बार इग्नोर करो, दैट इज C माइनस का ग्राफ, दैट आई विल कम टू. बट पहले हम लोग C प्लस को नोटेशन में देखते हैं. नोटेशन में C प्लस क्या हुआ? नोटेशन में कैन आई से, यहाँ पे क्या लिखा है? ST माइनस X माइनस CO. ST is the current share price minus the strike price minus the premium. This is what you are getting. This is what you are getting. Now if suppose ST is smaller than X, मतलब कि सिनेरियोज लाइक 40 पे है या 30 पे है, उस टाइम पे दिस थिंग विल बिकम नेगेटिव. बट क्या नेगेटिव हो सकता है पे ऑफ? कॉल ऑप्शन में पे ऑफ कैन नॉट बी नेगेटिव अपार्ट फ्रॉम द प्रीमियम. तो कैन आई से, एक बार प्रीमियम को हटा देते हैं, प्रीमियम क्योंकि हमेशा ही रहेगा कुछ भी हो जाए. कैन आई से पे ऑफ इज ST माइनस K but it is limited to zero. Can I say this is the payoff? कि अगर ST minus K negative आ रहा है, which basically means all those scenarios where ST is smaller than K, तभी ST minus K negative आएगा. अगर वो सिनेरियो हुआ which means ST minus K negative हुआ, तो जीरो एंड उस नंबर में मैक्सिमम क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा. बोलो, does this make sense to you? तो कैन आई से कॉल ऑप्शन पे ऑफ इज मैक्स ऑफ 0, ST माइनस K एंड देन बाहर में आप कॉल ऑप्शन प्रीमियम डाल दो माइनस द प्रीमियम, क्योंकि पे ऑफ कुछ भी हो, अगर जीरो भी हो उसमें आपका माइनस प्रीमियम तो होना ही होगा. सो दिस इज कॉल ऑप्शन पे ऑफ. अंडरस्टूड? एनी डाउट्स अप टिल हियर? तो कॉल ऑप्शन में क्या होता है? आफ्टर अलाउइंग फॉर प्रीमियम देयर इज अ लिमिटेड डाउन साइड. मैक्स टू मैक्स आप कितना डाउन जा सकते हो? प्रीमियम जितना. सो इट हैज अ लिमिटेड डाउन साइड, अनलिमिटेड अपसाइड. जितना शेयर प्राइस बढ़ेगा उतना ज्यादा प्रॉफिट. लिमिटेड डाउन साइड एंड अनलिमिटेड अपसाइड. कॉल ऑप्शन इज अपसाइड बेटिंग. Call option buyers are those who have bullish views on the market. All of these lines sit with you all now. Mind में set हो गया. Now let's look at the flip side, which means the call option sellers.
कोई भी ऑप्शन सेलर जो होते हैं, दे आर कॉल्ड राइटर्स, दे आर राइटिंग द ऑप्शन, ठीक है, दे आर कॉल्ड राइटर्स। तो बहुत बार यू माइट कम अक्रॉस दिस टर्म, सो इट इज इंपॉर्टेंट टू नो, एंड उनको हम लोग डिनोट करते हैं C माइनस से, बिकॉज उन लोग क्या किया, दे हैव शॉर्टेड द कॉल्स, नो, दे हैव सोल्ड द कॉल्स, दे हैव शॉर्टेड द कॉल्स। उनका पे ऑफ कैसा होगा? अब इसके लिए आई एम नॉट मेकिंग अ फ्रेश डायग्राम बिकॉज एक बनाना जरूरी था। उनका पे ऑफ क्या होगा? अप टू द स्ट्राइक प्राइस, बेसिकली मिरर इमेज होगा ना, जो भी ऑप्शन बायर का पे ऑफ है उसका मिरर इमेज सेलर का होगा, बिकॉज वट एवर द बायर इज सी माइनस वाला लॉजिक एक्सप्लेन कर पाएंगी? सी माइनस क्या होता है? हाँ। प्लस मतलब बाइंग, माइनस या मतलब सेलिंग। यस मैम। तो इफ यू आर बाइंग अ कॉल सी प्लस, इफ यू आर सेलिंग अ कॉल सी माइनस, सी माइनस। ठीक है। वो तीन राइटर option- वाला आपने एक बोला ना, वो वाला पार्ट। जो इंसान सी माइनस करते हैं बेसिकली सेलर ऑफ द कॉल, यस मैम। सेलर ऑफ द कॉल को राइटर बोलते हैं, सेलर ऑफ एनी ऑप्शन को राइटर बोलते हैं, ओके ओके। ठीक है। यस मैम। नाउ जो ऑप्शन राइटर है उसका पे ऑफ will be the mirror image of the buyer, because whatever the buyer is getting, the seller is paying, तभी he is getting, और कोई पार्टी तो है नहीं, there are just two parties। तो अगर C प्लस का ग्राफ ऐसा है तो C माइनस का कैसा होगा? ऐसा। यस मैम। अब समझते हैं कैसे हुआ ऐसा, मतलब नाउ इन आइसोलेशन लेट्स अंडरस्टैंड ऐसा कैसे हुआ। अप टू द स्ट्राइक प्राइस, द अप टू द स्ट्राइक प्राइस द बायर इज नॉट गोइंग टू एक्सरसाइज। तो जब तक द बायर विल ओनली नॉट कम एंड से दैट आई वांट टू बाय द शेयर, द सेलर वोंट डू एनीथिंग, सेलर के हाथ में कुछ है ही नहीं, द सेलर विल हैव टू डू व्हाटएवर द बायर सेज। तो अप टू स्ट्राइक प्राइस देयर इज नो मूवमेंट, खाली क्या हो रहा है, जो प्रीमियम मिला सेलर को, सेलर इज सिटिंग ऑन दैट प्रीमियम। तो यहाँ पे जो -5 का लॉस हो रहा था अप टू द स्ट्राइक प्राइस, ऑप्शन सेलर को 5 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है तब तक, ओके। नाउ एज सून एज द स्ट्राइक प्राइस हिट्स, what will happen? The option buyer will come and he will say that I want to exercise my option. वहां से option buyer started going up, तो अब यहां से option seller will start going down, डाउन जाते रहेगा। यहां तक तो उसके पास प्रीमियम था टू सेव हिम, तो वो लॉस नहीं कर रहा था। बट कौन सा पॉइंट होगा ये कोई बोल सकते हम लोग के एग्जाम्पल में? दिस पॉइंट, व्हाट प्राइस इज दिस? व्हाट प्राइस इज दिस जहां पे सेलर का प्रीमियम फिनिश हो जाएगा एंड लॉसेस शुरू हो जाएंगे? स्ट्राइक प्राइस प्लस प्रीमियम विच वॉज 55। 55। हाँ हाँ, किसी को डाउट है इसमें कि ये 55 क्यों है? 50 पे एक्सरसाइज होना शुरू हुआ ऑप्शन, 5 रुपीज का प्रीमियम पड़ा हुआ था सेलर के पास, सो द सेलर यूज्ड हिज 5 रुपीज टू fill the losses, but after the 5 rupees now the seller has to start incurring losses। जितना ऊपर जाएगा शेयर प्राइस, ये इस तरफ जाना मतलब शेयर प्राइस इज इंक्रीजिंग, तो जैसे जैसे शेयर प्राइस विल इंक्रीज वैसे वैसे सेलर का लॉसेस विल इंक्रीज। तो कैन वी से दैट कॉल ऑप्शन राइटर हैज अ लिमिटेड अपसाइड, अनलिमिटेड डाउनसाइड? कैन वी से दिस? लिमिटेड अपसाइड, क्योंकि 5 से ज्यादा तो सेलर कभी गेन ही नहीं कर सकता कॉल का, बट ही कैन लूज अनलिमिटेड, जितना शेयर प्राइस बढ़ेगा उतना ही विल लूज। कैन वी से दैट? यस मैम। ओके, तो क्लियर। अब एक बार बिना ये सब मार्किंग के 2 minutes look at this graph and see if you are understanding everything that is written।
ग्राफ देखो एंड रेड में आई हैव रिटन नोटेशन फॉर्म फॉर पे ऑफ C plus and C minus. Okay. Any doubts, anyone? Chalo. We'll move ahead. Moving on to put options. Put option में all technicalities remain the same. Only thing that changes is put क्या करते हैं? Put gives the holder a right to sell the share, which means exercise कब होगा? Below the strike price. Whenever the share price is less than the strike price, option will be exercised. बेरिश मार्केट्स पे बेट कर रहे हैं तो अब देखो इन दिस डायग्राम पहले ये वाला पे फोकस करते हैं. विदाउट प्रीमियम सिचुएशन. विदाउट प्रीमियम सिचुएशन क्या है? दिस इज द स्ट्राइक प्राइस. स्ट्राइक प्राइस के बाद एवरीथिंग कम्स टू स्टैंड स्टिल, नो मूवमेंट. स्ट्राइक प्राइस के नीचे सॉरी स्ट्राइक प्राइस के नीचे क्या हो रहा है? द होल्डर और द बायर ऑफ द पुट ऑप्शन, व्हाट विल दे डू? दे विल एक्सरसाइज. लेट्स से अगर यहाँ पे है, मान लो स्ट्राइक प्राइस वाज 50, इफ द करंट प्राइस इज 30, तो ऑब्वियसली द बायर विल गो एंड से दैट आई वांट टू सेल एट 50, क्योंकि मार्केट में तो 30 में बिकेगा. Buyer of the put option will say that only because they have the right to sell the share. So they will exercise the right and sell it at 50 instead of 30, 20 rupees profit. Correct? Similarly, अगर 35 हो गया, प्रॉफिट कम हो जाएगा. 20 rupees profit will come down to 15 rupees. 20 rupees, 15 rupees, 40 हो गया, तो क्या होगा? प्रॉफिट विल कम डाउन टू 10 rupees. तो धीरे धीरे क्या होगा? एज द स्ट्राइक प्राइस विल अप्रोच, प्रॉफिट विल कीप गोइंग डाउन. जितना कम शेयर प्राइस होगा उतना बेटर पुट ऑप्शन होल्डर के लिए, राइट? नाउ इसमें घुसाते हैं प्रीमियम सिचुएशन. बियॉन्ड द स्ट्राइक प्राइस द होल्डर विल बी लूजिंग आउट ऑन द प्रीमियम. तो जो भी प्रीमियम अमाउंट है -5, लूजिंग आउट ऑन द प्रीमियम अमाउंट. एंड उसके ऊपर सिमिलर होगा, खाली यहां से यहां तक का लॉस कवर करने के लिए प्रीमियम रहेगा और उसके बाद प्रॉफिट शुरू होगा. ठीक है? दिस पार्ट ऑफ द प्रॉफिट विल बी ईटन अप बाय द प्रीमियम एंड देन प्रॉफिट्स विल हैपन, विच मीन्स पुट ऑप्शन के केस में कौन सा प्राइस से प्रॉफिट शुरू हो जाएगा?
और रादर कौन से प्राइस के नीचे तक प्रॉफिट रहेगा? अप टू व्हाट प्राइस विल द पुट ऑप्शन होल्डर मेक प्रॉफिट्स, पॉजिटिव प्रॉफिट? सेम एग्जाम्पल है पहले वाला, 50 का स्ट्राइक प्राइस एंड 5 रुपीज प्रीमियम. व्हाट इज दिस प्राइस गोइंग टू बी? फिफ्टी का स्ट्राइक प्राइस है, 50 पे एक्सरसाइज करना शुरू होगा, मतलब 50 के नीचे एक्सरसाइज होगा. 5 रुपया नीचे तक प्रीमियम Below विल 45. प्रॉफिट. दिस विल बी 45. बिलो 45 प्रॉफिट्स होते रहेगा. एज सून एज 45 हिट करेगा, उसके बाद जब 46 होगा, पे ऑफ विल बिकम -4. 47 पे ऑफ विल बिकम -3. सॉरी, उल्टा बोल रहा. 46 पे -1, क्योंकि 5 रुपीज प्रीमियम का दिया हुआ एंड 4 रुपीज गेन. 50 to 46 वाला 4 रुपीज गेन एंड 5 रुपीज का प्रीमियम. 47 पे -2. -51 पे क्या होगा? -6, -1, -5. वेरी गुड. और ये फिर वाला अमाउंट कभी माइनस हो सकता है? सॉरी लैप से सॉरी. आपके जैसे होल्डर के कारण ही शायद राइटर्स इतना प्रॉफिट कमा लेते हैं. इसके बाद कांस्टेंट हो जाएगा, ये वाला पार्ट है अब. बिकॉज नाउ दिस +0 विल रिमेन एज इट इज, क्योंकि अब एक्सरसाइज ही नहीं होगा. अब एक्सरसाइज ही नहीं होगा. अंडरस्टूड? यस मैम. किसी को भी कोई भी डाउट यहाँ तक? एनीवन हु थिंक्स कि कोई कुछ और होना चाहिए कहीं पे यहाँ पे? सो पुट ऑप्शन या P प्लस का पे ऑफ कैसा बना? गिरता हुआ एंड देन स्टिल, गिरता हुआ प्रॉफिट जब तक स्ट्राइक प्राइस पे आया और फिर स्टिल हो जाएगा. तो P माइनस का कैसा बनेगा? ऐसा. दिस विल बी P माइनस. स्ट्राइक प्राइस के बाद खाली ये हटाओ. स्ट्राइक प्राइस के बाद ओनली अर्निंग द प्रीमियम, दिस मच प्रीमियम विल रिमेन विद द पुट राइटर. एंड इसके नीचे जब जब पुट ऑप्शन जो होल्ड करते हैं वो अपना राइट एक्सरसाइज करेगा, उतना देर तक द पुट राइटर विल हैव टू सफर. पुट राइटर विल हैव टू सफर. एज द शेयर प्राइस इंक्रीजेस, पुट राइटर का जो है सफरिंग कम होते जाएगा. बिकॉज जितना कम शेयर प्राइस उतना पुट होल्डर के लिए बेटर, पुट राइटर के लिए खराब. बट जितना बड़ा शेयर प्राइस उतना पुट होल्डर के लिए खराब एंड पुट राइटर के लिए बेटर. विच मीन्स ऑल ट्रांजैक्शंस हैपन वेयर? इन दिस सिनेरियो, ये सिनेरियो में स्टैंड स्टिल रहते हैं. ठीक है. इन नोटेशन टर्म्स पे ऑफ क्या होगा? कोई बोल सकता है P प्लस का पे ऑफ क्या होगा? यहाँ पे हिंट आई एम गिविंग अगेन, मैक्स होगा. ऑब्वियसली 0 पे कैप लगेगा, बट दूसरे साइड पे क्या होगा? व्हाट विल बी कैप? K -ST.
K माइनस एस टी, बिकॉज हम लोग खाली उस सिनेरियो का बात करें, वो सब सिनेरियोस का जहाँ पे शेयर प्राइस कम है, स्ट्राइक प्राइस बड़ा है, तो K माइनस एस टी विल गिव अस अ पॉजिटिव फिगर. ओके, स्ट्राइक प्राइस हैज टू बी बिगर, शेयर प्राइस हैज टू बी स्मॉलर, तभी खाली ये पॉजिटिव देगा आंसर, और ये चूज होगा, बाकी सब सिनेरियो में 0 चूज होगा. एंड ऑफ कोर्स माइनस P0 जो प्रीमियम है, P माइनस के लिए इट विल बी P0 माइनस मैक्स ऑफ 0, K माइनस एस टी. क्लियर? ये एग्जाम्पल आप लोग को घर पे करना है. इवन दो ऑल ऑफ दिस आई ऑलरेडी एक्सप्लेन, एंड आई थिंक शायद सिमिलर ही है. स्ट्राइक प्राइस 45 है, स्टॉक प्राइस दे दिया 50 ऑन मैच्योरिटी, कॉल का प्रीमियम 3.5, पुट का प्रीमियम 2.5. तो चारों के लिए C प्लस C माइनस P प्लस P माइनस सबका पे ऑफ और प्रॉफिट निकालना है. पे ऑफ, अगर पे ऑफ एंड प्रॉफिट दोनों बोलते हैं तो ऑलवेज रिमेंबर पे ऑफ इज नो प्रीमियम सिनेरियो, पे ऑफ इज नो प्रीमियम सिनेरियो, एंड प्रॉफिट में आप अपना प्रीमियम का एडजस्टमेंट करोगे. ठीक है, पे ऑफ में यू विल ओनली सी दैट आपका प्राइस डिफरेंस में कितना प्लस माइनस हो रहा है. प्रॉफिट में यू विल सी वेदर यू हैव पेड द प्रीमियम और यू हैव रिसीव्ड द प्रीमियम, अकॉर्डिंगली यू विल एडजस्ट इट. ठीक है, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट पे ऑफ इज वेरी बेसिक, कुछ भी नहीं है, क्योंकि फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में क्या होगा, बहुत छोटा बन गया ये, इसी में दिखा देते. फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में क्या होगा, ये शेयर प्राइस है, देयर इज नो ऑप्शन, एवरीवेयर एट एनी काइंड ऑफ शेयर प्राइस एक्सरसाइज करना होगा. तो जो लॉन्ग पोजीशन में, विच मीन्स दैट द पर्सन हैज एंटर्ड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट टू बाय, वो बेनिफिट करेगा जब जब स्ट्राइक प्राइस से ज्यादा होगा शेयर प्राइस, क्योंकि दे विल बी एबल टू बाय एट लोअर रेट्स एज पर द कॉन्ट्रैक्ट. तो यहाँ पे लीनियरली इंक्रीज, एंड बिलो द स्ट्राइक प्राइस इट विल फॉल लीनियरली. शॉर्ट पोजीशन का मिरर इमेज होगा, जब तक स्ट्राइक प्राइस के नीचे है तब तक द शॉर्ट वाला इज विनिंग, एज सून एज स्ट्राइक प्राइस हिट करके नीचे और आगे बढ़ा, लॉस में चला गया. मेक सेंस? इसका पे ऑफ में कुछ भी ज्यादा वैसा नहीं है. Any doubts on whatever we have done? तीनों काइंड का पे ऑफ समझ आ गया ग्राफिकली एज वेल एज नोटेशन से. So now go through the examples and MCQs. अभी आप लोग पहले फर्स्ट 4 चैप्टर्स का करो. ये वाला जो सेट है इसका MCQs I will tell you all when to start and which topic वाला MCQs to do. ठीक है, क्योंकि in this book थोड़ा सा arrangement is different than the Q forum MCQs, because Q forum MCQs are based on the other book, and इस book में थोड़ा ऊपर नीचे chapters, because it's the entire option chunk. FNO का पूरा chunk है, तो some part of the chunk once we are done, then I'll tell you which MCQs to do. Next class में we'll be doing banking MCQs. Okay, so I hope all of you have gone through the MCQs, attempted them, so that we can have a good fruitful discussion. Thank you ma'am. so much all of you. Good night. Thank you, ma'am. Good night.